Hello everyone, welcome to DA Lectures. In this particular video, we will be studying about recursion and how to find out a recurrence equation if a recursive algorithm is given to us. And then ultimately we will be looking at how to solve these recurrence equations so that we can calculate the time complexity of recursive algorithms. So let's start. The first question that we are going to study is the basic definition of recursion. See, in this particular video, specifically, I will be not teaching recursion in detail because I'm assuming that recursion you guys have already studied in data structures as well as in C programming. So what I will be focusing on is how to derive a recurrence equation. But still the basics is required. So let us, start with the definition. What is recursion? Talking about recursion, it is a function that call itself, right? A function जब अपने आप को बार बार कॉल करता है कुछ smaller values of input के लिए, तो हम उसे recursion कहते हैं. Means मैंने एक function लिखा, उस function के अंदर ही उसी function को call कर लिया for a different, input value. So every recursion program should have a terminating condition, which is also known as the stopping point or the base condition. Otherwise, an overflowed recursive program may go into an infinite loop. Then that is very essential कि हमें एक base condition provide करानी पड़ेगी. Next thing that I would like to tell is in recursion, one function calls itself, that is very evident. The number of parameters never changes because we are not changing the function, and of course the code will also never change, but only the parameter value changes. That means अगर मैंने basically होता क्या है, हमें एक input size दिया होता है n और हम उसी फंक्शन को बार बार उस इनपुट के ऊपर कॉल करते रहते हैं उस इनपुट के स्मॉलर वैल्यू पे. कब तक उस इनपुट को हम लोग डिक्रीज करते रहते हैं? जब तक हमारे पास बेस कंडीशन नहीं आ जाती. तो दैट इज द सेम डेफिनेशन व्हिच इज बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. Next thing that comes into our mind is that why and when we use recursion, right? हम recursion use कब करते हैं? तो recursion is basically used for solving bigger problems in terms of smaller problems. Let us see this statement with the help of an example. Example यहाँ पर जो मैंने quote किया है, that is a very simple example of calculating factorial. यहाँ पे फैक्ट नाम से एक फंक्शन है जिसके अंदर एक इंटीजर वेरिएबल पास किया गया है जिसकी वैल्यू है 5. ईच ऑफ अस knows that the value of factorial for 5 is equals to 120. और ये कैलकुलेट कैसे हुआ? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, राइट? तो बेसिकली किया क्या हमने? 5 की वैल्यू को डिक्रीज डाउन किया अप टिल 1 और मेथड क्या लगाया उसके ऊपर? मल्टीप्लीकेशन. दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. सी हाउ रिकर्जन वर्क्स. In this particular example, हमारे पास जो solution होगा that will be now 5, that is your input multiplied by the same function call, but this time the input size is reduced down to 1. Similarly, next call जो होगी आपकी fact function के लिए वो क्या होगी? 5 into 4 into fact 3. तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो what we are doing, we are just reducing the problem size. और ये प्रॉब्लम साइज आपका कब तक रिड्यूस होता रहेगा? जब तक कि आप बेस कंडीशन तक नहीं पहुंचते. यहाँ पर बेस कंडीशन क्या है कि जब तक n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती. जैसे ही n की वैल्यू 1 से छोटी यानी कि 0 हुई, हम लोग फंक्शन कॉलिंग को बंद कर देंगे. दैट इज माय बेस कंडीशन जो मैं इफ स्टेटमेंट में ऊपर फंक्शन कॉल के बाहर दे देंगे हम उसको प्रोग्रामेटिकली, राइट? बाद में हम इन वैल्यूज को जो है सॉल्व करेंगे. दैट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. दैट विल बी फाइनली इवेल्युएटेड टू 120. तो यहाँ पे जो एसेंस था आपको समझाने के लिए वो सिर्फ इतना कि यहाँ पर हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं पैरामीटर का साइज, राइट? ओनली द पैरामीटर इज चेंजिंग, नॉट द कोड नॉर द टाइप ऑफ पैरामीटर इज चेंजिंग, राइट? सो दैट इज द एसेंस. नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिकली मैंने ये स्लाइड यहाँ पर रखी है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो द डिसएडवांटेजेस एंड द एडवांटेजेस ऑफ योर रिकर्जन. सबसे पहले डिसएडवांटेजेस को देखते हैं. ये ज्यादा मेमोरी यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल आप इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए जो अभी हम लोगों ने पढ़ा. यहाँ पर हम लोगों ने फैक्टोरियल की कुछ 5 कॉल्स की हैं. मीन्स 5 बार मैंने कहीं पर ये फंक्शन जो है कॉल किया है फॉर डिफरेंट इनपुट वैल्यूज, राइट? तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं मेमोरी में कॉल करना पड़ेगा बिकॉज मुझे क्या करना है,
बाद में 120 को इवेल्युएट करना है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक स्टैक मेमोरी बनाऊंगी। सी आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट हम लोगों को मेमोरी में एक स्टैक बनाना पड़ेगा जो कि इन फंक्शन कॉल्स को स्टोर करेगा। और सबको पता है कि जो स्टैक है वो किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है और कैसे उसके अंदर से वैल्यू पुश और पॉप होती है। तो वी विल बी पुशिंग एंड पॉपिंग दी फंक्शन कॉल, और उसके हिसाब से हम लोग 120 कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो रिकर्जन है वो थोड़ी सी ज्यादा मेमोरी लेता है, और क्योंकि हमने पढ़ा कि रिकर्जन जो है वो बड़े इनपुट्स के ऊपर अप्लाई होता है, तो डेफिनेटली इफ द इनपुट साइज इज वेरी लार्ज देन रिकर्जन विल बी अ स्लो process to accomplish. Talking about advantages, of course, why we are studying recursion is because it reduces down the time complexity to a considerable extent. Next, it adds clarity to the code. The code becomes more readable, and when the code is very clear, then of course it will be reducing time for debugging or the error checking. तो उस कोड में से एरर निकालना हमारे लिए आसान होता है. Now, why I included this particular slide is because it is a very important interview question. So please, everyone should study recursion, thoroughly. अब जो हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो का एसेंस आता है, दैट इज रेकरेंस इक्वेशन, राइट। अब समझते हैं रेकरेंस इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि हमें इन्हीं के ऊपर काम करना है. द थिंग दैट वी नीड टू नो इज, अगर मेरे पास एक ऐसी एल्गोरिदम है जिसके अंदर रिकर्जन इन्वॉल्व है, तो अगर उस एल्गोरिदम को मैंने इनपुट साइज के एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, एक फंक्शन में कन्वर्ट किया, विच इज नथिंग बट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज, then that equation is known as recurrence or recurrence equation, right? तो अगर हमने क्या करा, रिकर्जन वाले एल्गोरिदम को अगेन एक फंक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करा, वैसे ही जैसे आइटरेशन को किया था, बट हियर द इक्वेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, राइट। तो अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आपकी स्क्रीन पर बाइनरी सर्च और क्विक सॉर्ट की दो रिकर्सिव एल्गोरिदम्स लिखी हुई हैं. बाइनरी सर्च का देखिए, टी ऑफ एन इज व्हाट, अ फंक्शन is equal to tn by 2. Now tn by 2 is also a function, right, which is executing on the size n by 2, right? तो smaller size के ऊपर वो execute कर रहा है, and we have a constant +1 with it. So हमारे पास क्या, एक ऐसी इक्वेशन जो फंक्शंस के टर्म्स पे हो, और वो फंक्शन किस पे एग्जीक्यूट हो रहा है, स्मॉलर साइज ऑफ इनपुट पे. इनपुट क्या है, n, और अंदर हमने किस पे एग्जीक्यूट करा, n by 2 पर. तो सच इक्वेशन इज नोन एज अ रेकरेंस इक्वेशन. अब हमने ये तो देख लिया कि ये रेकरेंस इक्वेशन है, लेकिन इसकी कुछ एसेंस भी होते हैं. एक रिकरेंस इक्वेशन को देखकर हमें एल्गोरिदम के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. तो लेट अस स्टडी दी द डिटेल्स ऑफ अ रेकरेंस इक्वेशन. अगेन मैंने बेसिक एग्जांपल ही लिया है बाइनरी सर्च का, बिकॉज बाइनरी सर्च का लॉजिक आप सब लोगों को क्लियर है. आपकी स्क्रीन पर है बाइनरी सर्च की रेकरेंस इक्वेशन, दैट इज टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी एन बाय 2 प्लस 1, राइट. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका मीनिंग समझना है. लॉजिक हमारे को बाइनरी सर्च का माइंड में क्लियर होना चाहिए. आई अज्यूम कि ये सबको पता है कि बाइनरी सर्च का लॉजिक क्या है, राइट. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज कि हमारे पास जो इनपुट साइज है, हम एक एरे एज एन इनपुट लेते हैं जो कि सॉर्टेड एलिमेंट्स का एरे होता है. सपोज उसका इनपुट साइज है n, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे फॉर एग्जांपल मैंने 10 साइज का एक एरे लिया, तो n की जो वैल्यू है फॉर हियर दैट विल बी इक्वल टू 10. अब हमारे पास जो बाइनरी सर्च होता है उसके अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होता है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द मिड पॉइंट. बिकॉज इट इज फॉलोइंग डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, तो हम लोग मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं. इस पर्टिकुलर केस में इट विल बी 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5, राइट. अब हमने क्या किया, मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, और उस मिड पॉइंट की वजह से हमारे एरे दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गए, से द लेफ्ट पोर्शन एंड द राइट पोर्शन. अब यहाँ पे बाइनरी सर्च का एसेंस क्या कहता है, अगर जो एलिमेंट ढूंढना है वो 5 पर रखा हुआ है तो बाइनरी सर्च यहीं पे कंप्लीट. अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, अगर एलिमेंट छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड पर बाइनरी सर्च लगाएंगे, राइट को डिस्कार्ड कर देंगे. मार्क माय वर्ड्स, वी आर डिस्कार्डिंग वन पोर्शन. अगर एलिमेंट बड़ा है तो राइट हैंड साइड पे सर्च होगी एंड वी विल बी डिस्कार्डिंग द लेफ्ट पोर्शन, राइट. तो बाइनरी सर्च यहाँ पे कितने पोर्शन पे अप्लाई होगी, दोनों में से किसी एक पर, करेक्ट. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप दैट इन माइंड. तो यहाँ पर जो चीज हमें अभी देखनी है,
एक साइड पर अप्लाई करेंगे तो उस एक साइड का साइज अब क्या रह गया, कौन से इनपुट पे अप्लाई होगी, सपोज लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई हो रहा है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड का क्या करेंगे हम लोग, उसका फिर से मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो अभी हमारा एरे कितना रह जाएगा, n/4 रह जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये हमें क्या बता रहा है, द रिड्यूसिंग ऑफ योर इनपुट साइज, राइट। अब द नेक्स्ट थिंग इज कि ये +1 क्या है हमारे पास, अभी हमें इतना पता चल गया, अभी +1 को डिकोड करते हैं। व्हाट इज +1? अगर हम लोग देखें तो यहां पर मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी हमारी, दैट विल बी कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस को इन्वॉल्व करता है, प्लस माइनस या फिर डिविजन हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो हमारे पास अगर अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं कांस्टेंट, विच इज डिनोटेड बाय बिग O ऑफ 1। तो यहाँ पर ये जो 1 सिग्निफाई कर रहा है, वो सिग्निफाई कर रहा है एक फंक्शन जो कि इस डिवीजन के लिए अप्लाई किया गया है। यहाँ पर वो कांस्टेंट था, किसी और एल्गोरिदम के अंदर इट कैन बी अनदर फंक्शन। क्विक सॉर्ट की बात करें तो वो n हो सकता है, किसी और एल्गोरिदम की बात करें तो n² log n, खाली log n, वो कोई भी फंक्शन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने डिवाइड एंड कॉन्कर के लिए, डिवाइड या कंबाइन करने के लिए क्या लॉजिक लगाया। जो रेकरेंस इक्वेशंस होती हैं वो ज्यादातर डिवाइड एंड कॉन्कर के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर रिकर्जन का यूज करता है। तो यहाँ पर डिवाइड या कंबाइन करने में जितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा जाएगा, दैट इज दैट पर्टिकुलर समिशन पोर्शन। तो वो 1 क्या है आपका, वो फंक्शन, राइट। एक बार समराइज कर लेते हैं इसे। वी हैव डिवाइडेड आवर इनपुट इनटू 2 पार्ट्स, द लेफ्ट एंड द राइट वन। As per the comparison, the binary search will be applied on one portion only. Remember, binary search सिर्फ एक ही portion पर apply करी जाएगी, इसलिए जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट इज T of n is equal to Tn/n. रिमेंबर दिस Tn/n, ये एक ही पोर्शन पे हम लोग बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, तो इसके मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं है। सपोज अगर ये एक ऐसी एल्गोरिदम होती जो लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन पे लिखती, तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड कर देती। वो क्या सिग्निफाई करता कि ये T of n दोनों जगह चलेगा, लेफ्ट पे भी चलेगा, राइट पे भी चलेगा, तो टाइम क्या होगा, दोनों का समेशन। यहाँ एक ही जगह लग रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन में देर इज नथिंग, दैट मीन्स देर इज 1 इन मल्टीप्लीकेशन, एंड +1 आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, राइट। तो अगर एक ही जगह लग रहा है तो दैट इज 1। सपोज अगर दोनों जगह हमारी एल्गोरिदम लगती, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दोनों ही पार्ट पर हम अपनी एल्गो को रिकर्सिवली चलाते, तो दैट वुड हैव बीन 2 into Tn/2, राइट। So that was the explanation of binary search and how to read the recurrence equation. अब जो हमारे पास आगे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज अगर मेरे पास एक रेकरेंस इक्वेशन गिवन है तो हम उससे रिकर्सिव एल्गोरिदम गिवन है तो उससे रेकरेंस इक्वेशन कैसे बनाते हैं। नाउ लेट अस सी दिस। एक फंक्शन गिवन है, दैट इज टेकन एन इंटीजर इनपुट n, और उसके अंदर कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। रिकर्सिव फंक्शन है क्योंकि फन अपने आप को दोबारा n-1 के लिए कॉल कर रहा है, राइट। अब देखते हैं, सपोज करिए इस पूरे के पूरे फंक्शन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है, दैट इज T of n। अब ये T of n क्या होगा, ये T of n होगा जितना भी स्टेप्स हम लोग इस फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इफ से लेकर फन n-1 तक, उसमें जितने भी टाइम लगेगा उसका समेशन होगा मेरा T of n। जाहिर सी बात है, फंक्शन का टोटल टाइम जितना भाई उस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में स्टेप्स लगे, उसका टाइम का समेशन। तो देखते हैं, हमारे पास पहला इंस्ट्रक्शन आता है यहाँ पे इफ कंडीशन। सबको पता है कि इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट, अर्थमेटिक ऑपरेशन, असाइनमेंट ऑपरेशंस, ये क्या लेता है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई विल बी रिटिंग 1 ओवर हियर, वेरी फाइन, उसको टाइम लगा कांस्टेंट। प्रिंट n एक सिंपल स्टेटमेंट है, आपको सिर्फ स्क्रीन पर एक वैल्यू को प्रिंट कराना है, टाइम लगा कांस्टेंट। बात करते हैं लास्ट फंक्शन की। अगर हमने बोला फंक्शन n अगर इनपुट है तो उसका टाइम लगा टोटल T of n। वही फंक्शन अगर इनपुट n-1 के लिए चलेगा तो टाइम कितना लगेगा, T of n-1। फिर दोबारा से कॉल होगा तो T of n-2। भाई यही होता रहेगा जब तक हमारे इफ कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, राइट। तो हर बार क्या होगा, T of n, then T of n-1, then T of n-2, then T of n-3, अप टिल जब तक कंडीशन सॉल्व नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे वी कैन से कि इसको टाइम कितना लगा, फंक्शन
इनपुट साइज कम कर दिया, राइट? अभी यही फंक्शन n के लिए कॉल हो रहा था तो टाइम लगा t ऑफ n, अब यही फंक्शन n-1 के लिए कॉल हो रहा है तो टाइम लगेगा t ऑफ n-1। तो t क्या था? इन सब का समेशन, उसको ऐड करा, तो ऐड करने के बाद आता है t ऑफ n इज इक्वल्स टू tn-1 प्लस 2 मेरे पास एक कांस्टेंट था तो मैंने उसे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ रिकर्सिव इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेम ही एग्जांपल है, बस इसके अंदर एक फॉर लूप को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो अगेन मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज टी ऑफ एन, और टी ऑफ एन क्या होगा? जो सारे स्टेप्स होंगे उसका समेशन। इफ और एल्स की बात करते हैं, दैट टेक्स टाइम इक्वल्स टू 1, एंड फॉर लूप है तो सबको पता है कि कंडीशन n तक है तो n तक चलेगा और +1 होगा क्योंकि वो दोबारा से वापस आएगा फॉल्स वाली कंडीशन को चेक करने के लिए। और फॉर लूप के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है, तो प्रिंट स्टेटमेंट उससे एक कम चलेगा। सी फॉर लूप कितना चलेगा? जब तक उसकी कंडीशन, और एक एक्स्ट्रा क्योंकि वो कंडीशन वॉयलेट भी चेक करेगा, लेकिन इनर जो है फॉर लूप का स्टेटमेंट्स वो कितनी बार चलेंगे? उससे एक कम, बिकॉज चेकिंग कंडीशन पे तो फॉल्स हो जाएंगे तो वो अंदर नहीं आएंगे, राइट? तो वो n टाइम्स चलेगा। आपने फंक्शन अभी फिर देखा, वो n-1 के लिए चल रहा था तो उसको हमने tn-1 लिख दिया। द आंसर विल बी एडिंग द समेशन, और अगर हम उसे ऐड करते हैं तो द वैल्यू कम आउट टू बी tn-1 प्लस 2n, राइट? अगर आप देखें तो यहाँ पे 2n है, राइट? दीज आर 2n प्लस द 1, दोनों 1 को ऐड कर दिया तो दैट इज 2। अब 2 मेरे पास कांस्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन में 2 भी मेरे पास एक कोफिशिएंट है कांस्टेंट, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया। द आंसर इज t ऑफ n इज इक्वल्स टू tn-1 प्लस n। सो दैट वाज अनदर एग्जांपल, राइट? अभी एक और एग्जांपल देखते हैं विच इज वेरी इजी बट अ लिटिल बिट डिफरेंट। सबको मालूम है फिबोनाची का एग्जांपल, राइट? फिबोनाची सीरीज को भी हम लोग रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी भी एक बार रिकर्सिव इक्वेशन देख लेते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करती है। टोटल फंक्शन का कॉस्ट t ऑफ n, अब तक समझ आ गया होगा आप लोगों को, और ये क्या होगा? जितने भी स्टेप्स अंदर हैं उसका समेशन। आगे देखते हैं इफ एल्स कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिटर्न। सी यहाँ पर रिटर्न पे मैंने 1 नहीं लिखा है, अगर आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं। आप अवॉइड भी कर सकते हैं बिकॉज वो कांस्टेंट है। अगर प्लस में 1 आता है तो दैट विल बी अल्टीमेटली रिप्लेस्ड बाय अ कैपिटल C, दैट इज द कांस्टेंट। डायरेक्टली आ जाते हैं एल्स वाले पोर्शन पर, जो कि रिटर्न करा रहा है दो फंक्शन, फिबोनाची फंक्शंस को ही, एक n-1 के लिए और दूसरा n-2 के लिए, और उसको ऐड कर रहा है। तो सिमिलरली हमने वही चीज करी जो पहले करते आ रहे थे, हमने दोनों ही फंक्शन को टाइम के फंक्शन के हिसाब से ऐड कर दिया। द थिंग दैट आई नीड टू स्पेसिफाई ओवर हियर इज कि हम लोगों ने यहाँ पे ये +1 क्यों किया है? व्हाट इज दिस द एसेंस ऑफ दिस +1? अगर आप देखें तो रिटर्न स्टेटमेंट में फिब n-1 और फिब n-2 को प्लस किया गया है, राइट? दोनों फंक्शंस को ऐड किया गया है। तो एडिशन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है, तो दैट इज व्हाई वी हैव जस्ट एडेड 1 ओवर देयर। सो सेम है, t ऑफ n क्या होगा? उसका समेशन होगा सारे स्टेप्स का। तो अगर हम इसको देखें तो इसका समेशन आता है हमारे पास tn-1 प्लस tn-2 प्लस 2, राइट? तो 2 हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो वी हैव concluded that t of n is equals to tn-1 plus tn-2 is the time complexity of recursive function for calculating Fibonacci series. Right? Now I hope that what is recursive equations, what is recursion is very much clear to you all. The video become a little bit longer, so let me not extend it. Thank you so much, and I shall be seeing you in the next lecture.